الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یہ گھنٹی آپ کی قرآن کی گھنٹی ہے اور اس کے اندر قرآن کی گھنٹی اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ جس یاد کی بدولت آپ باقی مواد پڑھتی ہیں، یعنی کہ آپ کے سامنے عقیدہ موجود ہے، آپ کے سامنے تفسیر فقہ ہے، اور اسی طرح کئی سارے علوم یا کئی سارے شرعی علوم، دینی علوم آپ کے سامنے موجود ہیں. ان علوم کا جو مصدر ہے یعنی کہ قرآن و سنت، تو ان دونوں مصدروں میں سے قرآن کی گھنٹی اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اور اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اس طرح پڑھیں جس طرح صحابہ کرام نے پڑھا ہے، اور اس طرح پڑھیں جس طرح صحابہ کرام نے ہم تک نقل کیا ہے، تاکہ ان کی یہ جو محنت ہے قرآن کو نقل کرنے کی، یہ محنت ضائع نہ ہو. تو اسی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے متعلق ایک چیز یہ ہے کہ جو اس کی تلاوت ہے، تدبر اور تفکر اور اس کے معنی کو سمجھنا، یہ تو تفسیر کا کام ہے، لیکن جو طریقہ تلاوت ہے یا اس کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں تجوید. دیکھیں تجوید کیا ہے؟ تجوید یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح قرآن کریم کے اندر جو حروف موجود ہیں اس کو کس طرح سے پڑھے جائیں، کیا مخارج ہیں ان کے، اور اسی طرح کہاں پر کھینچنا ہے، کہاں پر نہیں کھینچنا ہے، کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر نہیں غنہ کرنا ہے قرآن کو پڑھنے میں. اور اسی طرح اس کے علاوہ جو اشعار ہوتے ہیں، غزلیں ہوتی ہیں، یا عام بات چیت ہوتی ہے، عربی زبان جو جس زبان میں لوگ بات کرتے ہیں، تو ان کے بول بال کے طریقے میں، ان کے اشعار کے پڑھنے میں، اور اسی طرح قرآن کو پڑھنے میں کیا انتر ہے، یہ آپ کو تجوید کی مدد سے معلوم ہوتا ہے یا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو تجوید کے بارے میں جاننا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور کہیں پر اگر تجوید کے نہ جاننے پر غلطی ہو جاتی ہے، یا جس کو ہم لہن جری یا لہن خفی کہتے ہیں، یہ چیز نہ ہو اس لیے ہم تجوید پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے مخارج یا حروف کی ادائیگی کے متعلق کچھ غلطیاں ہوں جس کی وجہ سے اس کے اندر خلل پیدا ہو یا آیت کے معنی بدل جائیں، تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم تجوید پڑھتے ہیں. تجوید پڑھنا کیوں ضروری ہے آپ نے سمجھ لیا. اور بھی کئی ساری باتیں ہیں، اور ان باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جیسا کہ آپ اپنے کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَرَتَّلْنَاهُ ترتیلا. ہم نے قرآن کو کس طرح اتارا ہے؟ ترتیل کے ساتھ. یعنی کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو اتارا، تو کس طرح اتارا؟ وَرَتَّلْنَاهُ ترتیلا، کسی عام بات کی طرح نہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے ایک آدمی دوسرے آدمی سے، ایک عرب دوسرے عرب سے بات کرتا ہے اس لہجے میں، اس انداز میں نہیں بلکہ ترتیل کے ساتھ قرآن کو نازل کیا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں طریقے سے اس کو نازل کیا جائے، اور جبریل علیہ السلام ترتیل کے ساتھ ایک خاص طریقے کی تلاوت کے ساتھ ایک خاص طریقہ پڑھنے کا اختیار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو لاتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے صحابہ کو سکھاتے ہیں، اور صحابہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. ان میں سے بھی کئی سارے صحابہ مشہور ہیں جن کی آواز بڑی خوبصورت تھی. تو یہ جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شروع ہوا قرآن پڑھنے اور تلاوت کرنے کا، پھر جبریل علیہ السلام تک پہنچا، پھر جبریل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، اور پھر صحابہ سے تابعین، اور ان کے بعد زمانے زمانے ہم تک پہنچا.
تو जिस तरीके से पहुंचा उस तरीके से हम तिलावत करें, ये जरूरी है, ताकि जिस तरह नबी ने पढ़ा उस तरह हम पढ़ पाए, और कोई किसी भी किस्म की तब्दीली हमारी वजह से कुरान के अंदर ना आए। और एक और आयत आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? कहा कि हमी ने कुरान को उतारा है, हमी ने कुरान को नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है, तो कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। और इसकी हिफाजत सिर्फ अल्फाज को महफूज करके नहीं, सिर्फ इसके मानी को बचा करके नहीं, सिर्फ इसके तफसीर को बचा करके नहीं, सिर्फ इसके हरूफ को बचा करके नहीं, बल्कि जिस तरह से इनको पढ़े जाते हैं, जिस तरह से हरूफ की अदायगी होती है, जिस तरह से कुरान की तरतील होती है, जिस तरह कुरान की तिलावत होती है, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा है। इसलिए आज भी हम कुरान को पढ़ते हुए तजवीद की अहमियत को मानते हैं, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म भी दिया है। ठीक है, एक जगह इरशाद हुआ है कि वरतल्लाहु तरतीला, कि हमने उसको उतारा है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को तरतील के साथ पढ़ने का हुक्म भी दिया है। क्या कहा? वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, हुक्म दे रहा है वरत्तिल। ठीक है, ये सीग़े अम्र है। अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा है, हुक्म दे रहा है, कह रहा है क्या? वरत्तिलिल कुरआन, कुरान करीम की तिलावत करो तरतील के साथ। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, ठहर ठहर कर, इत्मीनान के साथ, तजवीद के साथ, तजवीदी अहकाम को समझते हुए, पुरसुकून होकर के, जिस तरह हरूफ के मखारिज होने चाहिए उस तरह मखारिज को अदा करते हुए। तो इसलिए हमें पाबंदी से तजवीद को सीखना है, और उसको कुरान पढ़ते हुए अप्लाई भी करना है। और तीसरी जगह क्या अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया? कहा व कुरआन फरक़नाहु लितक़रअहु अला अन्नासि अला मुक्थ, हमने कुरान को साफ साफ और वाज़ेह अंदाज में तरतील के साथ उतारा है। ठीक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों तक कुरान को पहुंचाते थे, लोगों के सामने कुरान को पढ़ते थे, तो मुरत्तल अंदाज में खूबसूरत तिलावत के साथ तजवीद के अहकाम को समझते हुए या उन पर अमल करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को पढ़ते थे। तो तरतील करने से क्या होता है कि कुरान के जो अल्फाज हैं वो साफ साफ जिस तरह कुरान में मौजूद है उस तरह अदा हो जाते हैं, और लोगों के कानों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो कई बार होता क्या है कि बात वही होती है, उसके कहने का तरीका अगर बदल जाए तो हो सकता है सामने वाला कोई दूसरा मफहूम ले ले, या हो सकता है उसे कोई दूसरा हक सुनाई दे जाए, दे दे। हम में से ऐसे कई हैं जो बहुत तेज बात करते हैं, तो ऐसे कई सारे हरूफ है जो वो छट्टा देते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे हरूफ खा जाते हैं, सामने वाले को साफ साफ सुनाई नहीं देता है, या जो सामने वाला बात कर रहा है उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जरूरी है, और यही फर्क है लोगों के बातचीत करने के तरीके में और कुरान को पढ़ने के तरीके में, कि हम कुरान को पढ़ते हुए तजवीज का ख्याल रखते हैं, और कुरान को साफ साफ वाज़ेह अंदाज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। और वाज़ेह अंदाज में तभी पढ़ पाएंगे जब हम तजवीद की अहमियत को समझेंगे, तजवीद को अमल में ला करके कुरान को पढ़ेंगे। और इसी तरह आप देखिए, तजवीद को यूं कह सकते हैं कि बाकी जो आसमानी किताबें उतारी गई हैं, ठीक है, जिनमें से जो मजकूर या जिनके नाम जाने गए हैं, जैसे कि तौरात है, जबूर है, इंजील है, और जो आखिरी किताब है कुरान मजीद, इनके दरमियान एक तरह का फर्क ये भी है कि इसके अंदर या इसके तिलावत का एक खास तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। ठीक है, आसमानी किताबों में जब फर्क करते हैं तो फर्क इस तरह से भी होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी आसमानी किताबों की हिफाजत की गारंटी नहीं ली है, लेकिन कुरान मजीद की हिफाजत की गारंटी अल्लाह तबारक व तआला ने ले रखी है। तो ये एक बुनियादी और पहला फर्क हम
گنتے ہیں جب ہم ان آسمانی کتابوں میں مقارنہ کرتے ہیں۔ ایک دوسرا مقارنہ کرنے کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے یا قرآن کے اندر جو تجوید پائی جاتی ہے وہ ایک فارق ہے قرآن اور باقی آسمانی کتابوں کے درمیان۔ تو یہ تمام باتیں تھی تجوید کی اہمیت کے متعلق، میرے خیال سے واضح ہو گئی ہوگی، اور اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے، بلکہ کچھ علماء اس کے سیکھنے کو واجب بھی قرار دیتے ہیں تاکہ ہم ایسی غلطیوں سے بچ سکیں جس کی وجہ سے اس کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ استاد جی، جی ابھی آپ نے بتایا قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں کے درمیان تجوید کیا ہے؟ ہاں، تجوید ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم فرق کر پاتے ہیں باقی آسمانی کتابوں میں، یعنی کہ جب مقارنہ کیا جاتا ہے یا کیا اس ایک طرح ہم کہتے مقارنہ ہیں کا کہ مطلب کیا ہے؟ مقارنہ کا مطلب کمپیئر کرنا، ٹھیک ہے؟ جب ہم ٹھیک. ایک کتاب کو دوسری کتاب سے کمپیئر کرتے ہیں، یا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ قرآن ہو، کیا فرق ہے، ہم تمام پہ کیوں نہیں عمل کر سکتے ہیں؟ تو کئی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے یا ان تمام کتابوں کے درمیان جو فروقات موجود ہیں یا جو فرق موجود ہے اس کو بیان کر کے ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں ان تینوں کتابوں پر عمل نہیں کرنا ہے بلکہ قرآن پر عمل کرنا ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی بتاتے ہیں ہم لوگ کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے، باقی کتابوں کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی ہے، ایک یہ فرق ہے۔ اور دوسرا فرق ہم کیا بتاتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے پڑھنے کا طریقہ خاص کیا گیا ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو خاص کر دیا ہے، اس طرح باقی آسمانی کتابوں میں کوئی خاص طریقہ پڑھنے کا متعین نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم چیزوں میں فرق کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو کمپیریزن کرنے کا ایک ریزن یہ بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو جب ہم تجوید کو سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حروف کی ادائیگی کس طرح کی جائے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام دکھ رہا ہوگا، اور یہ ہمارے منہ کا ڈائیگرام ہے۔ منہ کے اندر زبان درمیان میں آپ کو دکھ رہا ہوگا، اور دونوں طرف آپ کو دانت دکھ رہے ہوں گے، اور درمیان میں خالی جگہ دکھ رہی ہوگی۔ نیچے آپ کو حلق کے پاس کئی سارے ڈویژن دکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے منہ کا نقشہ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کون سے حروف کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جب ہم تجوید کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، کون سے حرف کا مخرج، حروف کا مخرج کہاں سے ہے، منہ کے کس پارٹ سے کس حرف کا مخرج ہوتا ہے، کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ڈائیگرام، اور آپ کے منہ کے اندر جتنے بھی پارٹس موجود ہیں، چاہے وہ دانت ہو، زبان ہو، یا اسی طرح اس میں ناک کا بھی دخل ہے، اور اسی طرح ہونٹ کا بھی دخل ہے، حلق کا بھی دخل ہے اس کے اندر، اور بلکہ آپ کے منہ کا جو خالی حصہ ہے اس کا بھی آواز کی ادا کرنے میں دخل ہے، اس کا بھی تعلق ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے حروف ہیں، یا جو ہمارے منہ کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے یعنی کہ حلق، حلق کے اندر آپ کو 6 حروف دکھائی دے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کیا کیا ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اس کو ہم حروف اظہار بھی کہتے ہیں، آپ کو پڑھا ہوگا۔ نون ساکنہ کے احکام میں سے جو ایک حکم ہے اظہار، اس کے اندر 6 حلقی حروف ہم جوڑتے ہیں، اور وہ یہی 6 حروف ہیں جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ ایک ترتیب سے ہم گلے کو یا حلق کو بھی 3 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ ایک ابتدائی حصہ ہوتا ہے، ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے، اور ایک اخروی حصہ ہوتا ہے یا جو آخری حصہ ہوتا ہے۔ تو ان میں سے جو ہمارے حلق کا جو پہلا
हिस्सा है वो कौन सा है? निचला हलक या इब्तिदाई हलक। इब्तिदाई हलक के अंदर आपको दो हर्फ दिख रहा होगा, हमजा और हा। ठीक है, हमजा हम्म, और हा, ये हाँ आपके हलक के इब्तिदाई हिस्से से अदा होता है, हमजा हा। हाँ ठीक है, हमजा हा, इसमें आपके जुबान का ज्यादा दखल नहीं है, यानी कि जुबान की पोजीशनिंग से ज्यादा मतलब नहीं होता है। ठीक है, हमजा हा, हमजा की आवाज क्या है? आ। हाँ, ये हमारे हर्फ के इब्तिदाई हिस्से से अदा होती है या सबसे निचले हिस्से से अदा होती है। इसके बाद आप देखिए जो दरमियानी हिस्सा है या वसते हल्क जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर दो हरूफ आपको दिख रहा होगा, आइन और हा। ये हमजा और हा, यानी कि ये जो आवाजें हैं आ और हा के ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो दरमियानी हलक है, उससे कितने हरूफ अदा होते हैं? दो हर्फ कौन कौन से हैं? आइन और हा। हाँ आइन हा, इसमें आप देखिए हाँ आपको थोड़ा सा थोड़ी सी मशक्कत हो रही होगी या थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा होगा। तो यही है कि हम हमारा हमारी जुबान का इसमें दखल है। जुबान की पोजीशनिंग से मतलब होता है आइन और हा की जब हम अदायगी करते हैं तो हमारे जुबान पर भी एफर्ट पड़ता है, वो पीछे की तरफ हल्क से उसका भी दखल होता है, उसमें शुमार किया जाता है। ठीक है, तो आप जब आइन और हा की अदायगी करेंगी तो ध्यान देना है हल्क को या हल्क में आपको वो एफर्ट महसूस होगा। ठीक है, तो कहेंगे आइन आइन जितने आसानी से हमजा और हा निकल रहा था उतने आसानी से आइन और हा नहीं निकलता है, बल्कि थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, आइन हा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए अ, हल्क का जो आखिरी हिस्सा है या जो वो हिस्सा जो बाहर की तरफ ज्यादा करीब है, के अंदर दो हर्फ शामिल है और वो कौन कौन से हैं? गैन और खा। गैन खा। ठीक है, ये हर्फ आखिरी इसको ज्यादा होते हैं, गा खा, गा खा, गा खा। इसमें भी आपके जुबान की हरकत की जरूरत होती है। जो जुबान का जो जड़ होता है उसकी हरकत की जरूरत होती है। गा खा, गा खा। ध्यान रहे गा नहीं कहना है, गा जब आप कहेंगी तो उसका मखरज बदल जाता है। गा की अदायगी हल्क से नहीं होती है, बल्कि गा की अदायगी किस तरह होती है? जुबान का जो पिछला हिस्सा है या जो शुरुआती हिस्सा है पीछे से या उसकी जड़ के जो करीब वाला हिस्सा है, वो जब ऊपर तालू में जाकर के मिलता है, टच होता है, तब गा की अदायगी होती है, गा गा। ठीक है, वो इससे अलग है। गा आप कहेंगे तो वो मुंह से अदा या जुबान ऊपर तालू में लग करके अदायगी हो रही है, लेकिन गैन की अदायगी वो हल्क से होती है। तो जब तक वो हल्क से ना निकले उसको गैन हम नहीं कहेंगे, बल्कि वो गाफ शुमार किया जाएगा। गाफ को कहा जाएगा, जो उर्दू में गाफ मौजूद होता है, काफ के बाद जो मौजूद होता है गाफ। ठीक है, तो गा की आवाज नहीं निकालनी है, बल्कि हल्क से किसकी आवाज निकालनी है? गैन की आवाज, गैन। ये तरीका है, मेरे ख्याल से वाज़ेह हो गया होगा। तो इस तरह से आपने हरूफ हल्की को समझ लिया, या वो हरूफ जो हल्क से अदा होते हैं उसको किस तरह अदा किया जाए, ये आपने जान लिया। और ये भी जान लिया कि जब तक इन हरूफ को उन्हीं जगहों से ना अदा किया जाए तब तक वो उन हरूफ की मखारिज सही तरीके से अदा नहीं हो पाएंगे या उनकी अदायगी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। जैसे कि मैंने आपको समझाया मिसाल के तौर पर गैन और गाफ के दरमियान कई लोग ऐसे हैं जो गैन को गा की आवाज देते हैं, गा को गा की आवाज देते हैं, तो उसका मखरज बदल जाता है, क्या की अदायगी हलक से नहीं होती है, तो इस तरह से वो गैन नहीं रह जाएगा। और जब तक कि वो हल्क से अदा नहीं होगा उसको हम गैर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जरूरी है कि हमजा हा, आइन हा, गैन खा, इन हरूफ की अदायगी कहाँ से हो? हलक से हो। अलबत्ता वो उसकी पोजीशनिंग हलक के अंदर फर्क हो सकती है, कुछ इब्तदाई हिस्से से निकलते हैं, कुछ दरमियाने हिस्से से थोड़ी सी मशक्कत के साथ थोड़े से एफर्ट के साथ निकलते हैं, कुछ हमारे हल्क के आखिरी हिस्से से निकलते हैं जैसे गैन और खा।
अब इसके बाद अ, आप देख सकती हैं कि इसके अंदर या इस डायग्राम के अंदर एक ड्राइंग बनी हुई है जुबान की। ठीक है, ये जुबान की ड्राइंग है, और इसके अंदर आपको तीन डिवीजन कर दिया है, तीन हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया है। ठीक है, ये रूफ की पोजीशनिंग बता रहा है कि कौन सा हर्फ किस जगह से अदा होगा। ठीक है, तो आप ये भी नोट नोट कीजिए कि जुबान के जितने पीछे आप जाएंगे, ठीक है, जुबान के जितने आप पीछे जाएंगे, उतनी एफर्ट लगानी पड़ रही है, उतनी शार्प आवाज देनी पड़ रही है, उतनी मशक्कत उठानी पड़ रही है, और जितने आप जुबान के आगे लाएंगे उतने ही वो हर्फ आसान होते जाएंगे, उनकी अदायगी आसान होते जाएगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो जुबान का सबसे निचला या जो जड़ वाला हिस्सा है, वो हिस्सा जो जड़ के सबसे करीब होता है, वहां पर हरफ काफ बना हुआ है। तो जब आप हरफ काफ को अदा करना चाहती हैं, तो जुबान का जो इब्तिदाई हिस्सा है या जो जड़ से करीब तक का हिस्सा है, उस हिस्से को आप ऊपर तालू से जब टच करेंगी, मुंह का जो ऊपरी हिस्सा है, वहां पर जुबान को जब ले जाकर टच करेंगी, तब जाकर के आपकी अदायगी होगी। ठीक है, आप कहकर देख सकती हैं, और अपने अंदर ही उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम उस हर्फ की अदायगी किस तरह कर रहे हैं। जब हम आप कहते हैं तो हमारा जुबान कहाँ पर जाकर के टच होता है, यह आप खुद समझने की कोशिश करें। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारे जुबान का जो इब्तिदाई हिस्सा है वो ऊपर तालू में जाके टच हो रहा है। आप कह के देख सकती हैं, आप जुबान का जो इब्तिदाई हिस्सा है वो ऊपर तालू में टच होता है। ठीक है, अब वही इब्तिदाई हिस्सा जो हमने ऊपर टच किया है, उस हिस्से को छोड़ करके हम थोड़ा सा और आगे आए, तो हमें जो काफ है या जिसको हम छोटा काफ कहते हैं, उसकी अदायगी का पता चलता है। तो आप कह के उसको देख सकते हैं, कैफ, कैफ, कैफ। काफ के लिए हमने जुबान का इब्तिदाई हिस्सा टच किया, अब उससे थोड़ा सा आगे आकर के अगर हम तालू में टच करते हैं, तो छोटे काफ की अदायगी होगी। कैफ, कॉफ, कैफ, कॉफ, कैफ, कॉफ, कैफ। ठीक है, अब इसी तरह आप तदरीज के साथ स्टेप बाय स्टेप आप अपने जुबान के एक एक हिस्से को तालू में टच करते जाएंगे, और हर की अदायगी बदलती जाएगी। ठीक है, या मुख्तलिफ हरूफ की अदायगी होती जाएगी। तो मिसाल के तौर पे आप स्क्रीन में देख करके भी खुद अमल कर सकती हैं। ठीक है, एक एक हर्फ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप जीम पढ़ रही हैं तो जुबान का कौन हिस्सा ऊपर तालू में टच हो रहा है? जीम, तो जुबान का दरमियानी हिस्सा। ठीक है, जीम, जीम जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु में टच होता है, तब जा करके जीम की अदायगी होती है। जीम, जीम, जीम। ठीक है, इसी तरह और आगे बढ़ेंगी तो टीन, टीन, टीन। जुबान का अगला हिस्सा ऊपर तालु के पास जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर से टच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शीन की अदायगी के वक्त हमें उसके अंदर कुछ हवा देनी होती है। ठीक है, शीन के अंदर जब तक हम हवा नहीं देंगे स्ट्रिंग की अदायगी नहीं होगी, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि ये एक शार्प हर्फ नहीं है। ठीक है, तो ये एक शार्प हर्फ नहीं बल्कि एक स्मूथ टाइप का हर्फ है, तो इसके अंदर हमें हवा देने की जरूरत होती है। तो शीन की अदायगी के वक्त जुबान का या अगला हिस्सा या आगे से थोड़ा सा जो पिछले पीछे वाला हिस्सा है, या दरमियान ही कह सकते हैं, दरमियानी हिस्सा, वो जब ऊपर तालू के पास करीब जाएगा और हवा के साथ उसको निकालेंगे तो शीन की अदायगी होगी। शीन, शीन। और जब आप छोटे सीन के पास आएंगे तब पता चलेगा कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह जुबान के यही दरमियाने हिस्सा अगर आप ऊपर तालू में टच करती हैं, तो या की अदायगी होगी। या, या, या। पहले या की अदायगी के लिए पहले से ही जुबान तालू में टच रहे। जब उसको आप नीचे लाएंगी, जब जुबान को नीचे लाते हुए हवा को मुंह से निकालेंगी, तो या की अदायगी होगी। किस तरह से? पहले पहले से आप टच करके रखिए, या, या। जब आप उसको छोड़ेंगी,
जब आप जुबान को नीचे लाएंगी तब या की आवाज आएगी। या, या, या। जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू में टच रहता है, बुनियादी तौर पर टच रहता है। जब हम उसको नीचे लाते हैं तब जाकर के या की अदायगी होती है। या, या। तो इस तरह ये दरमियानी जुबान के जो हरूफ हैं उसको उसी नक्श फिर से कर लेते हैं। जीम, सीन, या। ठीक है, इसके अंदर जुबान का दरमियानी हिस्सा शामिल है। अब आ जाइए उन हरूफ पर शेख जी जो मखरज दोबारा बताइए ना, जीम शीन और या का अलग अलग मखारिज आपने बताया ना तीनों के मतलब। जी जी, जुबान के दरमियानी हिस्से से ही ये तीन हरूफ अदा होते हैं। जी लेकिन जो तरीका है अदा करने का, यानी कि जुबान को किस तरह से ऊपर नीचे करना है, इसमें फर्क है। बाकी दरमियानी हिस्से में ही दरमियानी हिस्से से ही अदा होता है। ठीक है, तो जब हम जी जुबान के दरमियानी हिस्से को ऊपर तालुओं में टच करेंगे तो जीम की आवाज आएगी, जा, जा। ठीक है, जब हम जी जुबान के दरमियानी हिस्से को ऊपर तालू की तरफ करीब ले जाएंगे लेकिन थोड़ी सी हवा के साथ निकालेंगे तो शीन की अदायगी होगी, चा, चा, चा। ठीक है, ज्यादा हवा देनी रहती है, चा, चा। और इसी तरह या के लिए क्या करना है, जुबान को ऊपर तालू में टच आपने रखेंगे और जब हम उसको नीचे लाएंगे तो या क्या अदायगी होगी, जी या, या। ठीक है, तो ये तरीका है। अब आ जाइए जुबान के अगले हिस्से में, जो कि सबसे आखिरी हिस्सा है या जिसको हम टिप भी कहते हैं, जुबान का जो टिप है ये अब क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो तालू के साथ मिलकर आवाज निकालते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आगे वाले दांत के साथ मिल करके आवाज निकालते हैं। ठीक है, इनमें से जो पहला हर्फ आपको दिख रहा होगा वो है हर्फ सीन, 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 सीन। ठीक है, तो ये सीन की अदायगी के वक्त हम जुबान का अगला हिस्सा उसको आगे की तरफ लाएंगे और बड़ी ही बारीक अंदाज में हवा को निकाला जाता है, या इसको कह सकते हैं कि सीन को सीटी की आवाज देनी रहती है। ठीक है, जब कोई सीटी बजाता है तो हवा को बारीक करता है। ठीक है, आप सीटी जो आला बजाया जाता है तो सीटी बजती इस तरह है कि हम उसको उसके अंदर जब फूंक मारते हैं, जहां से फूंक मारते हैं वो थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन जहां से वो हवा निकलता है वहां पर उसका मखरज काफी बारीक होता है। यानी सीटी अगर आप देखें वो जो आला रहता है गेम्स वगैरह में बजाए जाते हैं, उसका भी यही तरीका यही है, उसका मैकेनिज्म यही है कि जहां से हवा दी जाती है वहां पे वो मोटा रहेगा या काफी जगह रहेगी हवा जाने के लिए, लेकिन जहां से वो हवा निकलता है वहां पे काफी बारीक रहता है। ठीक है, यह हवा का मखरज काफी छोटा रहता है। तो जब हवा दब जाती है तो सीटी की आवाज निकलती है। ठीक है, जब हवा दबती है, हवा के निकलने का पतला सा रास्ता रहता है और बड़े ही फोर्स के साथ वो हवा निकलती है तो सीटी की आवाज देती है। और जब मखरज ज्यादा बड़ा होगा तो वो सीटी की आवाज नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो अगर हम सीन की आवाज निकालना चाहते हैं तो हमें बड़ी ही कम मात्रा में हवा निकालना है मुंह से और उसको सीटी की आवाज देनी रहती है। ठीक है, तो जब हम जुबान की मदद से काफी बारीक जगह बनाएंगे हवा के निकलने के लिए तभी जा करके सीन की अदायगी होगी और वो जुबान के अगले हिस्से यानी इसके टिप से ही पॉसिबल है। तो किस तरह से अदा करना है, तीन, तीन, तीन। जुबान को ऊपर और नीचे वाले तालू में इस तरह से करीब कर देना कि कहीं और हवा का मखरज ना बने और सिर्फ एक बारीक सा रास्ता हवा के निकलने का रहे, तभी जाके सीन की अदायगी होगी सीटी की आवाज के साथ। अब देखिए, यही फर्क है सीन और शीन में। ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया या जो मैकेनिज्म मैंने सीटी वाला बताया है वही सेम आपको अपने मुंह में भी अप्लाई करना है, तब जाके सीन और शीन में फर्क आपको दिखेगा। ठीक है, सीन की अदायगी करेंगे तो हवा को हमें बड़ी ही बारीक मखरज देना है, बड़ी ही कम मात्रा में
हवा के मुंह से बाहर निकालना है, तब जाके सीटी की आवाज में सीन की अदायगी होगी। लेकिन जब हम ज्यादा मात्रा में हवा को निकालते हैं तब जाके सीन की आवाज होती है। ठीक है, आप ये चीज सीन और सीन की अदायगी को महसूस कर सकते हैं कि सीन के लिए हम बड़ी बारीक आवाज से बड़ी ही कम मात्रा में हवा निकाल रहे हैं, सीन सी। ठीक है, लेकिन जब हम शीन को कह रहे हैं तो बड़े ही ज्यादा मात्रा में हम हवा निकाल रहे हैं, जैसे कि सा सा, पूरे मुंह में हवा भर लेते हैं और वही फिर बाहर निकालते हैं। सा 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 और सा में यही फर्क है। ठीक है, तो जो पीटी वाला जो मैकेनिज्म है वही सेम हमें मुंह में भी अप्लाई करना है। तो सीन की अदायगी के लिए बड़ी बारीक हवा निकालनी है, और सीन की अदायगी के लिए मुंह में हवा भर लेना है, तब निकालना है, तब जाकर के शीन की अदायगी होगी। अब बाकी जो तीन हरूफ बचते हैं, लाम, नून और रा, इनकी अदायगी का तरीका ये है कि लाम और नून के वक्त हम जुबान को अपने दांत या ऊपरी दांत के आगे वाले हिस्से में टच करेंगे। ठीक है, पीछे से दांत के अंदरूनी हिस्से में अपने जुबान को टच करेंगे, आगे वाले जो दांत है जिनको हम सनाया कहते हैं। ठीक है, ये जो सनाया है इन्हीं को हम टच करेंगे, दांत अपने जुबान को इन्हीं में टच करेंगे, तब जाकर के लाम और नून की आवाज आएगी। लाम, नून। ठीक है, लाम, लाम, नून। ठीक है, अरबी जुबान में लाम की अदायगी को क्या करना है, जुबान को अगले दांतों में टच करना रहता है, लाम, नून। लेकिन इंग्लिश में जब हम एल की आवाज निकालते हैं तो वो फर्क रहता है। ठीक है, जुबान को या जुबान के टिप को ध्यान में रखिए। जुबान का जो टिप होता है उसको हम ऊपर में टच करते हैं, तब एल की आवाज निकलती है। ठीक है, जो इंग्लिश में जो एल मौजूद है, ला की जो आवाज इंग्लिश में मौजूद है वो अरबी वाले से अलग है। अरबी में हम जुबान के टिप को ऊपर वाले आगे दोनों दांतों में टच करते हैं पीछे से, तब जाके लाम की अदायगी होती है। लेकिन इंग्लिश में उसी टिप को हम तालू में टच करते हैं, ऊपर वाले हिस्से में, मुंह मुंह का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें टच करते हैं, तब जाके एल की अदायगी होती है। ठीक है, एल, एल, कॉल। ठीक है, लेटर, कॉल, बॉल। जुबान का जो टिप है वो ऊपर तालू में टच होगा तो एल की आवाज आती है। अरबी में किस तरह है, फर्क है, जुबान का जो टिप है वो अगले दांतों में टच होगा। रा, रा की अदायगी ये भी जुबान के टिप से होती है। जुबान का जो टिप होता है वो ऊपर तालू में जाकर के टकराएगा और वाइब्रेशन के साथ, ठीक है, टकरार के साथ, टकराव के साथ, वाइब्रेशन के साथ अदा करेंगे, तब जाके रा की आवाज आएगी। रा, रा, जुबान ऊपर नीचे होगा। ठीक है, बड़ी ही स्पीड में जुबान ऊपर नीचे होगा, तब जाकर के रा की अदायगी होगी। और ध्यान में रहे, वाइब्रेशन आप अपने कंट्रोल में रखें, कितनी बार जुबान वाइब्रेट करे ये आपको अपने कंट्रोल में रखना है। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करना है, रा नहीं, क्या है, रा, रा, बड़े ही मुख्तसर अंदाज में उसको अदा करना है, तब जाकर के रा की अदायगी होगी। फिर तो दोबारा बता सकते हैं, हमारा नेट चला गया था तो वो मिस हो गई ना फिर। कौन से हरूफ आपसे मिस हो गए? तो आप वो शीन तक या तक आपने जो बता रहे थे। तो चलिए ठीक है, मैं वक्त रहते एक बार दोहरा देता हूँ, फिर उसके बाद बाकी इंशाल्लाह अगले घंटे में पढ़ सकते हैं। बाद मैं शुरू से दोहरा देता हूँ, आप लोग जो है सुन लीजिए, दोहरा लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इब्तिदाई जो हरूफ है या हरूफ हल्की, जो आपके मुंह का जो सबसे पहला हिस्सा है, यानी कि जिसको हम हलक कहते हैं, तो सबसे अंदरूनी और पहला हिस्सा है हलक। इसके साथ 6 हरूफ शामिल हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, फा। बितरतीब इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक वो 2 हर्फ यानी कि हमजा और हा जो हल्क के सबसे निचले हिस्से से अदा होते हैं, हाँ, ये इसमें आपको एफर्ट नहीं लगाना है। इसके बाद आता है दरमियानी हलक, हलक का बीच वाला हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा,
उसके अंदर जो हर्फ शामिल है आइन और हा, इसके अंदर आपको एफर्ट डालना है, आवाज निकालने में थोड़ी सी मशक्कत उठानी पड़ेगी। आइन आइन, हा। उसके बाद आपके हल्क का जो आखिरी हिस्सा है उसमें दो हर्फ शामिल है, गैन और मैंने बताया जब तक ये हरूफ यहीं से नहीं अदा होंगे तब तक हम उन हरूफ की अदायगी को तस्लीम नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप गैन को गा पढ़ते हैं तो वो गा नहीं माना जाएगा जब तक कि वो हलक से अदा ना हो। ठीक है, तो हलक के तीन हिस्से हमने बताए, एक निचला वाला हिस्सा, एक दरमियानी हिस्सा और एक सबसे ऊपर वाला हिस्सा या वो हिस्सा जो बाहर की तरफ सबसे ज्यादा करीब है। तो छह हरूफ आ गए, हमजा हा, आइन हा, गैन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जुबान की तरफ। वो हरूफ जो जुबान की हरकत, आमतौर से तमाम हरूफ के अंदर जुबान की हरकत शामिल होती है, लेकिन जुबान के खास खास हिस्से या आगे पीछे पिछले वाले हिस्से ऐसे कुछ खास हरूफ के लिए हैं जिनकी हरकत से ये अदा होते हैं। ठीक है, जैसे कि काफ, काफ और कफ ये जुबान के इब्तिदाई हिस्से से या जो जड़ से करीब वाला हिस्सा होता है वहां से अदा होते हैं। तो काफ को जब हम तालू में टच, जुबान के पिछले हिस्से को जब हम तालू में टच करेंगे तो काफ की अदायगी होगी, और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जुबान के पिछले हिस्से को हम ऊपर तालू में टच करेंगे तो छोटे काफ, काफ की अदायगी होगी, काफ, काफ। ठीक है, और उसके बाद आप जुबान के दरमियानी हिस्से में आ जाइए। जुबान के दरमियानी हिस्से को जब आप ऊपर तालू में टच करेंगे तो जीम की अदायगी होगी। इसी तरह थोड़ी सी हवा के साथ मुंह में हवा भर करके सेम पोजीशन में, यानी कि जुबान को ऊपर की तरफ ले जाएंगी, ऊपर तालू में टच करेंगी और मुंह में हवा भर करके जब आवाज निकालेंगी तो वो शीन की आवाज आएगी, शीन, शीन। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि शीन की अदायगी के वक्त जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है वो तालू में टच नहीं होता है, और वो टच इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम मुंह में हवा भर रहे हैं तो हवा के मखरज के लिए कुछ जगह खाली होनी चाहिए। तो मुकम्मल तौर से जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है वो ऊपर तालू में टच नहीं होगा शीन के वक्त, लेकिन हमें ऊपर की तरफ तो जुबान के दरमियानी हिस्से को ले जाना है और हवा भर करके मुंह से निकालना है, तब शीन की अदायगी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं शीन, शीन। और इसी तरह या का हमने सीखा कि जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है उसको हम ऊपर तालू में टच करेंगे, फिर जब हम आवाज को निकालेंगे तो या की अदायगी होगी, या, या, या। ठीक है, अब बाकी जो हरूफ बचते हैं जुबान के अगले हिस्से में आ जाते हैं, या जो जुबान के अगले हिस्से से निकलने वाले खास हरूफ हैं, जैसे कि सीन, लाम, नून और रा। तो इनके अदायगी का तरीका क्या है कि सीन के अदायगी के वक्त हम जुबान को ऐसे पोजीशन में लाएंगे कि हवा बड़ी ही बारीकी से बाहर निकले। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था सीटी वाला, उसी तरह से जिस तरह सीटी से बड़ी बड़ी बारीक आवाज निकलती है, हवा को हम एक मोटे मदखल से डालते हैं, एक ऐसे होल से डालते हैं जहां पर काफी जगह होती है, वहां से हम हवा को अंदर डालते हैं, फूंकते हैं, और जहां से हवा बाहर निकलती है वो मखरज काफी बारीक और छोटा होता है, तो उस तरह से सीटी बजने लगती है। वही वही कॉन्सेप्ट हमें जुबान में भी लगाना है, यानी कि जुबान को ऐसे पोजीशन में हम रखेंगे कि हवा बड़ी ही बारीकी से बाहर निकले, तब जाकर के छोटे सीन की अदायगी होगी, सीन, सीन, सीटी की आवाज आनी चाहिए। और लाम और नून की अदायगी इस तरह होगी कि जुबान के अगले हिस्से को यानी जुबान के टिप को हम ऊपर के दोनों दांतों, आगे वाले जो दांत हैं उनके पीछे हम टच करेंगे तो लाम और नून की अदायगी होगी, लाम, नून, लाम, नून। ठीक है, और की अदायगी मैंने बताया था जुबान का जो ऊपरी ये अगला हिस्सा सनाए है, टिप उलिया की वाला जड़ हिस्सा से है। जी, सनाए उलिया की जड़ से हम लाम को निकालेंगे या पीछे मसोड़े? हमारा जो जुबान का विड्थ है वो सिर्फ एक ही जगह पे नहीं टिकेगा, वो आपको अपने अंदाज से पता चल जाएगा। जब आप उसको आगे टच करने जाएंगी तो वो सिर्फ एक ही जगह पे नहीं टच रहेगा। ठीक है, वो आपको एहसास होगा कि वो कुछ हिस्सा मसोड़ों का भी ले रहा है, क्योंकि अगला हिस्सा जब आगे जाकर के दबता है तो वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप रबड़ ही ले लीजिए, या ऐसा कोई जेली की तरह कोई सब्सटेंस हो, मौजूद हो, कुछ जेली की तरह कोई चीज हो, और आप उसको
اگر آپ دباتی ہیں کسی چیز پر تو جو چیز دبتا ہے، جس پر پریشر پڑتا ہے، وہ پھیلنے لگتا ہے، وائڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم اپنے زبان کو جب ہم اوپر دانتوں میں جا کے دبائیں گے تو وہ دانتوں کا بھی کچھ حصے میں ٹچ رہے گا، اور اسی طرح مسوڑے کے کچھ حصے میں بھی ٹچ رہے گا. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. آپ چاہے صرف دانت ہی میں ٹچ کریں، ہلکا سا ٹپ لگائیں، زبان کا ٹپ ہلکے سے اگر آگے دانتوں میں یا صرف مسوڑوں میں ٹچ کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ حرف ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لام، لام، اگر آپ صرف مسوڑوں میں ٹچ کرتے ہیں تب بھی وہ ہو جائے گا. البتہ ضروری یہ ہے کہ زبان کا جو ٹپ ہے وہ منہ کے اگلے حصے میں جا کر کے ٹچ ہو. ٹھیک ہے. چاہے وہ دانت ہو چاہے وہ مسوڑے ہوں. ٹھیک شکراً ہے. سر. اور اسی طرح میں نے کیا بتایا تھا را کے متعلق کہ را کی ادائیگی کے وقت جو زبان کا ٹپ ہوتا ہے وہ اوپر تالو میں جا کر کے وائبریٹ ہونا چاہیے، اوپر نیچے ہوگا، اور وہ وائبریشن آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. انلمیٹڈ نہیں، اس کو کنٹینیوسلی وائبریٹ نہیں کرنا ہے، ورنہ وہ اس طرح سے نہیں ادا ہوگا جس طرح را کی ادائیگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. را، یہ لمبا ہو جا رہا ہے، بلکہ صرف تقریبی طور پر کہہ سکتے ہیں 2 یا 3 وائبریشن کافی ہے. را، ما، ما، 2-3 وائبریشن کافی ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی. اور حروف کی ادائیگی کے وقت آپ جب تک خود اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کریں گی، یعنی کہ جب میں پڑھتا ہوں تو اس حرف کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ خود جو ہے دماغ دوڑائیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا میری زبان صحیح جگہ جا رہی ہے کہ نہیں، کیا وہ تالو کے بجائے زبان کو ٹچ کر رہی ہے، کیا اس حرف کا مخرج زبان کے بیچ والے حصے سے ہے اور اس کو میں پہلے ہی والے حصے سے نکال رہی ہوں، یا اس کا تعلق زبان کے اگلے حصے سے ہے، سب سے آخری والے حصے سے ہے اور اس کو میں بیچ سے نکال رہی ہوں. تو یہ خود آپ حرف کی ادائیگی خود اندازہ لگانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو خود سمجھ میں آئے. جب تک آپ پریکٹیکلی اس کو آپ خود جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گی، حرف کو ادا کرتے ہوئے آپ اپنے منہ کے اندر جو موومنٹس ہو رہے ہیں اس موومنٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک آپ مخرج کو نہیں سیکھ پائیں گے. اس طرح سے رٹا مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. آپ لوگ جب زبان سے ادا کریں تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا زبان کہاں جا رہا ہے، میرا حلق کس طرح سے آواز نکالنا ہے، ہوا میرے کنٹرول میں ہے کہ نہیں، منہ سے کتنا ہوا نکالنا ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے کہ نہیں، کتنے وائبریشنز را کے لیے کرنا ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے کہ نہیں، یہ آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں. بارک اللہ فیکم. وقت ختم ہو چکا ہے تو یہیں پر مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.